Hello students. In the previous lecture, I have discussed about the Rydberg formula. And you see here, there is a numerical on the Rydberg formula. So see example 12.6. Using the Rydberg formula, calculate the wavelength of the first four spectral lines in the Lyman series of the hydrogen spectrum. So let us see what is the Rydberg formula. Rydberg formula we have discussed and found this one is the Rydberg formula. If the transition is taking place between two energy levels, then in photonic form h nu energy will be there, and that will be equal to the difference of the energy level initial ENI minus final energy level. Okay, if higher energy to lower level jumping is there, then emission will be there, and if from lower to higher is there, absorption of energy will be there, then only it can jump to higher level. So from that you see h nu if is equal to me to the power 4 upon 8 epsilon 0 square h square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. This is known as the Rydberg formula, in which this quantity me to the power 4 upon 8 epsilon 0 square h cube c is known as the Rydberg constant, and its value is 1.03 into 10 to the power 7 per meter. Okay. So this formula will be using in this numerical. So see, so Rydberg formula is h nu means hc upon lambda is equal to m into the power 4 upon 8 epsilon 0 square h square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. Now Rydberg constant is me to the power 4 upon 8 epsilon 0 square h cube into c, and that value is 1.07 into 10 to the power 7. Okay, so from that we can know the value of m e to the power 4 upon 8 epsilon 0 square h square. Okay, so what it comes as 13.6 electron volt. It is good to remember this thing, that m e to the power 4 upon 8 epsilon 0 epsilon 0 square h square is equal to 13.6 electron volt, and convert into joule, that it comes to be 21.76 into 10 to the power minus 19 joule. So put the value here. Okay, so what is lambda if here? Lambda if is hc divided by this factor, this whole factor. So lambda if, you see, lambda if is hc divided by 21.76 into 10 to the power minus 19, this value of this 1 upon 1 minus 1 upon ni square. Why 1 upon 1 is written here? So, and why lambda I1 is written here? Because this 1 shows the final destination. What is the final destination? We will see in this graph. You see, that day I have discussed about the Lyman series. So n is equal to 2 to n is equal to 1. N is equal to 3 to n is equal to 1. N is equal to 4 to n is equal to 1. So electron is going from this higher energy level to lower energy level. Okay, so it is an emission spectrum, and the destination is, the final destination is n is equal to 1, or the ground state. So that will be the Lyman series. So we have put in this numerical for Lyman series, the final destination nf, this is 1. Okay, so that's why it is 1 here. Now lambda is calculated into a value of h 6.625 into 10 to the power 30, for c value 3 into 10 power 8. Substitute here and we will get such type of short expression in the terms of ni. Okay, so what is the first wavelength of the Lyman series? If we put ni is equal to 2 से 1 में jumping होगा तो lambda 1 मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा अपने, ठीक है, lambda 2 2 1 मिल जाएगा, और 3 से 1 में जंपिंग होगा तो यहाँ n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अपने को मिलेगा lambda 3 1.
और n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये मिलेगा लैम्डा 4 1. So by putting the respective values, n is equal to either 2, 3, 4 and 5, we will get these value of the wavelengths. This is the first wavelength of the Lyman series, this is the second wavelength, third wavelength and fourth wavelength and so on. Okay student, so you know how to use the Rydberg formula. Now next article is de Broglie explanation of the Bohr's second postulate of quantization. अब बोर का जो पोस्टुलेट था उसमें मोस्ट पजलिंग क्या था, सेकेंड पोस्टुलेट था. उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो भाई एंगुलर मोमेंटम ऐसा ही क्यों होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई ही क्यों होना चाहिए. ये कहाँ से आ गया h अपॉन 2 पाई, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है. तो ये जो बोर्स का पोस्टुलेट था उसके 10 साल के बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें डी ब्रॉगली साहब ने बताया कि भाई ऐसा है. क्या बताया उन्होंने, पहली बात तो डी ब्रॉगली जो है उसने ये देखा कि बोर का जो पोस्टुलेट है उसमें एंगुलर मोमेंटम की बात है और एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होना चाहिए, लेकिन क्यों. तो डी ब्रॉगली का उस वक्त जो है इलेक्ट्रॉन एज ए वेव की डिस्कवरी चल रही थी. इलेक्ट्रॉन वाज बिहेविंग एज ए वेव. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें जो है ये पता चला था इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज ए वेव. ओके, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली सेड द इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन वेव. डी ब्रॉगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह लेना चाहिए इन इट्स ऑर्बिट. ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन वेव किस तरीके की होगी, वो इलेक्ट्रॉन वेव इस तरीके की होगी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ. इस बात को हम समझ लेते हैं कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा. ठीक है, देखिए ये स्ट्रिंग पे ए बी इज स्ट्रिंग, इसके ऊपर एक वेव बनाई है. ठीक है, तो यहां से यहां तक गए, ये इधर तक गई, बी तक गई वेव येलो वाली. ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होके ये बी पे देखिए वापस आ रही है रेड वाली. तो यहाँ से ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज 1 लैम्डा, 1 वेवलेंथ. ठीक है, और दूसरी वाली वेव देखिए, नाउ दिस इज स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज देयर ऑन द स्ट्रिंग ए बी, देयर इज अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न. ओके, व्हेन वेवलेंथ इज 1 वेवलेंथ या फिर 2 वेवलेंथ, ये नीचे शो किया गया है. ए बी स्ट्रिंग पे देखो 2 वेवलेंथ है. ये येलो वाली ए से बी की तरफ जाए गई और बी से ए की तरफ आने वाली जो है ये रेड वाली, और दोनों जो है सुपर इम्पोज करेंगे और स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म करेंगे. तो स्टेशनरी वेव कब बन सकती हैं, या तो 1 वेवलेंथ हो गिवन लेंथ में, गिवन लेंथ ए बी में या तो 1 वेवलेंथ हो या 2 वेवलेंथ हो या 3 वेवलेंथ हो, इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ हो गिवन वेवलेंथ. ठीक है, तो लेट अस सी द स्टेशनरी वेव कैन ओनली सर्वाइव if integral number of wavelength is there. So see this figure. In this figure, only those wavelengths survive which have nodes at the ends and form the standing wave in the string as I've shown. दोनों साइड में नोड बना हुआ है, देखो ये नोड है और ये नोड है, इसके बीच में एक वेवलेंथ है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेशनरी पैटर्न बना हुआ है इसके बीच में. ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेशनरी पैटर्न तभी है जब इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ हो. ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट बताई गई है. नाउ काउंट द वेव्स, एक वेव ये हो गई, दूसरी, तीसरी और ये चौथी. फोर वेवलेंथ्स आर देयर ऑन द सर्कमफरेंस. On the path there are 4 wavelengths. Electron wave is making 4 wavelengths and therefore this is stationary. Therefore it is stationary. Okay, और कोई भी वेवलेंथ होगी तो उसमें क्या होगा कि वो इंटरफेयर करेगी दूसरी वेवलेंथ के साथ में और उनके एम्पलीट्यूड्स जो है जीरो हो जाएंगे. ये स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड जीरो नहीं होगा, ये इस तरीके का स्टेशनरी पैटर्न बनाएगी. ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, उसने कहा कि फॉर स्टैंडिंग वेव टू सर्वाइव
the circumference 2 pi r must be equal to the integral multiple of the lambda. तो उससे, और लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है. डी ब्रॉगली फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी. दिस इज द डी ब्रॉगली फॉर्मूला. तो लैम्डा की ये वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन एम बी आएगा. 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन एम बी आएगा. बराबर. तो एम वी आर कितना हो गया, इससे एम वी को इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करिए, 2 पाई को उधर लेके जाइए तो आपका आ जाता है ना एन एच अपॉन 2 पाई. तो यह बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन आ गई. एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, एल इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच अपॉन 2 पाई, विच इज द बोर क्वांटम कंडीशन. तो इस तरीके से डी ब्रॉगली ने उसको क्या किया, डी ब्रॉगली ने उसके बोर्स के पोस्टुलेट को स्ट्रेंथ दी और उसको सपोर्ट किया. तो डी ब्रॉगली का पोस्टुलेट जो है वो बोर्स का पोस्टुलेट को माना जाने लगा. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये जो डी ब्रॉगली ने ये बोर मॉडल जो था, बोर मॉडल में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी. तो पहली प्रॉब्लम की थी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल स्टूडेंट्स. पहली बात तो यह है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द हाइड्रोजेनिक एटम्स. हाइड्रोजेनिक मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स. हाइड्रोजन लाइक एटम्स किस में हो सकते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है, 1H1 1H2 1H3 हाइड्रोजन. ठीक है, 3 उसके आइसोटोप्स होते हैं. तो इसमें हाइड्रोजन में क्या है, सिंपल हाइड्रोजन 1H1 में 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड 1 प्रोटॉन. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा कोई एलिमेंट हो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसके न्यूक्लियस में भी 1 प्रोटॉन हो, तो वो हाइड्रोजेनिक एटम हो जाएगा. ठीक है. आप यू कैन से कि ओनली जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसको ही एप्लीकेबल था बोर का मॉडल, और जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, जैसे कि बड़े साइज का एटम ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गॉन ले लीजिए. ठीक है. तो उसमें क्या है कि ऑर्बिट्स ज़्यादा होती हैं, और जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके लिए बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं है. राइट. वो ऐसा क्यों होता है, वाई द ओनली हाइड्रोजेनिक एटम्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल, वाई द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द बोर मॉडल. रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो हो रहा है, इंटरेक्शन जो हो रहा है, उसको हमने कंसीडर ही नहीं किया है. देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आल्सो. खाली न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आल्सो, और वो इंटरेक्शन हमने कंसीडर नहीं किया है, देयर बोर ने कंसीडर नहीं किया है. इसके लिए बोर मॉडल को नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. ओके. दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है बोर मॉडल का, दिस इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम. बोर मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता था रिलेटिव इंटेंसिटीज स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें जो लाइंस आती हैं, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस जो है शार्प होती है, और कुछ लाइन जो है, ये देखिए, some of the visible frequencies have weak intensity, others are strong. तो ये जो रिलेटिव इंटेंसिटीज आ रही थी स्पेक्ट्रम में, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर का मॉडल. इसके लिए these are the two limitations of the Bohr model. Okay. Students, let us know about laser light now. लेजर लाइट क्या होती है, इसमें एग्जांपल दिया है कि एक भीड़ है बम्बई में, जो है बॉम्बे बीटी स्टेशन पे बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे सीरीज सीट दिखाई देते हैं. ठीक है. दूसरी तरफ अगर आप आर्मी का मार्च देखेंगे, लेफ्ट राइट वाला, 26 जनवरी की परेड होने वाली है, तो उसमें आप देखेंगे तो उनके जो फुट स्टेप्स जो है एकदम सिस्टमेटिक चलते हैं, लेफ्ट राइट रेगुलेटेड मार्च होता है आर्मी का. ठीक है. सोल्जर्स का मार्च कैसा होता है, रेगुलेटेड. तो ये जो लेजर लाइट है वो इसी तरीके से एक रेगुलेटेड लाइट है.
ठीक है, रैंडमली इधर उधर नहीं चला जाता है। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेजर। ठीक है, लेजर कई तरीके की होती है। लेजर जैसे पेंसिल लेजर होती है, लो पावर लेजर 0.5 मिलीवाट की, जिससे हम इंडिकेट करते हैं। जब भी कोई अपना लार्ज स्क्रीन पे पढ़ा रहा होता है तो लेजर पॉइंटर से इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर लेजर्स होती है हाई पावर की, वो डेलिकेट लेजर्स होती हैं। जो डेलिकेट सर्जरी होती है ना, आँख की, आँख का ऑपरेशन होता है, स्टमक का ऑपरेशन होता है, तो वो लेजर जो है वहाँ ऑपरेशन करती है, उस तरह की लेजर होती है। फाइनली और लेजर्स कैसी होती हैं? जिनसे हम कटिंग कर सकते हैं, मेटल के बड़े बड़े पीस को कट कर सकते हैं और स्टील की वेल्डिंग कर सकते हैं, ऐसी लेजर्स भी होती हैं। तो लेजर्स क्या है बेसिकली? तो लेजर को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी सोर्स है, ऑर्डिनरी सोर्स है लाइट का, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स होती हैं, और वहां पे कोई फेज रिलेशन नहीं होता उन सब वेव्स के अंदर, बिटवीन वेरियस वेव्स। और फेज रिलेशन नहीं है, दे आर नॉट कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या होगा कि उनकी जो, उनके इंटरफेरेंस से जो इंटेंसिटी जनरेट होगी वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी रहेगी, ज्यादा कुछ बढ़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन हमें इंटेंसिटी अगर ज्यादा चाहिए, और इसके साथ में और क्या होगा, अगर इनको हम जो है किसी होल से पास करेंगे इस तरीके की लाइट को, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को, जैसे बल्ब से आने वाली लाइट को, दैट विल स्प्रेड वेरी फास्ट एंड बीम साइज इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को अगर जो है हम एक होल में से पास कराएंगे, ये होल है और ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ये स्प्रेडिंग हो जाएगी लाइट की। लेकिन जो है लेजर में क्या होता है, लेजर जो होता है, लेजर में जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से जो कॉलिमेटेड बीम चलती है और वो स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, तो लेजर जो है ये स्प्रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो है सेम वेवलेंथ वाली वेव्स है, ऑल वेवलेंथ्स आर सेम। देयर इज अ बेटर फेज कोरिलेशन ओवर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फेज कोरिलेशन बना के चलती हैं, और ये जितने भी पैकेट ऑफ वेव्स इसमें से निकलते हैं लेजर में से, वो जो है उनका वेवलेंथ जो है सेम होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, डाइवर्जेंस रिड्यूस हो जाती है एंड वी गेट ए कॉलिमेटेड बीम। व्हाट वी गेट? वी गेट ए कॉन्सेंट्रेटेड कॉलिमेटेड बीम फॉर आवर यूज। अब ये लो पावर की भी बना सकते हैं जैसे पॉइंटर के लिए, और थोड़ा ज्यादा पावर की भी ऑपरेशंस वगैरह के लिए, और उससे ज्यादा पावर के लिए स्टील की वेल्डिंग और कटिंग करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, this chapter is finished with this article, and we will be meeting in the next lecture and the next chapter. Till then, goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything: apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.